Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to all. Student, our next lesson is lesson number 23, The Two Merchants of Seri. Now, see here. I will read the lesson first, then I will explain it. Okay? Now, once upon a time, in a place called Seri, there lived a merchant. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. He travelled every day with another merchant who also sold brass and tinware. But this other man was greedy. When he sold something, he sold it at a very high price. But when he bought something, he tried to give as little as possible. Now see here, student, first of all, the new word from this paragraph. See here, first of all, Seri. Okay, it is one of the name of the town. Okay, and next one is merchant. Okay, merchant means व्यापारी. Okay, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके व्यापार करते हैं उसको मर्चेंट बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रैवल्ड मीन्स जर्नी. ओके, अगेन द न्यू वर्ड कम्स फ्रॉम दीज yes, brass. Okay, the meaning of brass means bright yellow metal made by mixing two metals. Okay, it is a bright yellow metal. Okay, afterwards tinware. Tinware means things made of tin, a metal. Okay, it is one of the metal. Now next one is greedy. Okay, the meaning of greedy means very greediness. Okay, means in Hindi we can say lalach. Okay, very lalchi person. It's called a greedy. Okay, now see here the meaning of this stanza. I will explain properly now. See here, student, what happened? Once upon a time in a place called Seri, there lived a merchant. एक जो विलेज था सीरी नाम का, वहाँ पे मर्चेंट व्यापारी रहते थे. ओके, ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टीन. वो क्या करते थे? टाउन टू टाउन जाके, एक गांव से, एक विलेज से दूसरी विलेज जाके, वो अपने पास जो पॉट्स था और जो पैन्स थे, ओके, पॉट एंड पैन्स में जो बर्तन होते वो एक जगह से दूसरी जगह जाके उसको सेल करते थे. दे अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड थिन, जो पॉट्स थे और पैन्स थे वो किससे बने हुए थे? ब्रास और किससे बने थे? टीन से बने थे. ओके, जो एक मेटल के जो टाइप्स होते ब्रास और टिनवेयर, उससे वो चीज़ें बने हुई थी. He travelled every day with another merchant who also sold brass and tinware. वो जो मर्चेंट था उसके साथ में और एक मर्चेंट भी आता था और वो भी क्या करता था? वही चीज़ें सेल आउट करता था. बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी. बट जो ये दूसरा वाला जो व्यापारी था, जो मर्चेंट था, वो कैसा था? उसका बिहेवियर कैसा था? ही वॉज ग्रीडी पर्सन, बहुत लालची पर्सन था वो. When he sold something, he sold it at a very high price. जब वो अपने पास से कोई चीज़ बेचता था दूसरों को, तो हाई प्राइस में बेचता था. ज़्यादा कीमत वो लगा के वो चीज़ें बेचता था क्योंकि वो ग्रीडी था. और क्या करता था? But when he bought something, he tried to give us as little as possible. See here, student, at the old age days what happened, वहाँ पे कैसे exchange करते थे? They are not having money ना, so they use currency just like things. They exchange their things. For example, अगर मेरे पास कुछ चीज़ है तो मैं क्या करूँगी? मुझे अगर दूसरी चीज़ लेनी है तो मुझे जो नहीं लग रहा है, जो मेरे पास एक्सेस है, वो मैं दूसरों को दे के उनके पास से वो मैं
परचेस करती थी, ओके, क्योंकि तब मनी जो करेंसी है वो नहीं थी, डेवलप नहीं हुई थी। तब वो एक चीज़ देके दूसरी चीज़ जो लगने वाली है वो लोग वो परचेस करते थे। दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज द थिंग्स। तो वो क्या करता था ये ग्रीडी वाला मर्चेंट, अपने पास से जो चीज़ जो लोग ले रहे हैं उसको ज़्यादा प्राइस में बेचता था, और उसको जो चीज़ लेनी थी दूसरों के पास से वो कम से कम, एज लिटिल एज पॉसिबल, कम से कम प्राइस लेके वो खरीदता था। मतलब वो क्या देखता था, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता था। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर स्टूडेंट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। नाउ the next paragraph, see here student, when the two merchants went into a town, they divided the street between them. Each one went up and down the streets he had chosen, calling tinware for sale, brass for sale. People came out to their doorsteps and bought or traded with them only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his rounds there. Now see a student, when the two merchants they went for sale into a town, they first of all decided that they are chosen one of the street, okay. For example, if one of he choose the right street, then he go forward and another go to the left side, okay, left side street, okay. जब वो दोनों मर्चेंट जब टाउन में एंट्री करते थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि मैं ये रास्ते से जाऊंगा और तू दूसरे रास्ते से जाना, ओके। और वो क्या करते थे, वहाँ पे जाके वो फिर आवाज़ लगाते थे, टिनवेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल, चलो टिनवेयर के चीज़ें ले लो, ब्रास के चीज़ें ले लो। पीपल जब जब पीपल्स उनकी बातें सुनते थे तो वो लोग डोर स्टेप के वहाँ पे, दरवाजे के वहाँ पे आके वो देखते थे कि ये मर्चेंट क्या लेके आए हैं सेल के लिए, एंड बॉट और ट्रेडेड विद देम, ओके। और वो क्या करते थे, एक तो वो मनी देके वो परचेस करते थे, नहीं तो फिर एक्सचेंज करते थे अपनी चीज़ें। ओनली आफ्टर वन मर्चेंट हैड फिनिश्ड हिज बिजनेस ऑन दैट स्ट्रीट डिड द अदर वन मेड हिज राउंड्स देयर। उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया था तो ये इजी हो गया उनको। वो लोग क्या करते थे, अपने अपने जो चूज़ किया है अपना अपना स्ट्रीट, वहाँ पे जाके ट्रेड करते थे अकेले अकेले। और फिर जब एक मर्चेंट का वो रास्ता, वो स्ट्रीट पूरा बिजनेस वहाँ से वो कर लेता था तो वो दूसरा मर्चेंट फिर वहाँ पे जाता था, ओके। फिर वो वहाँ पे जाता था, उससे पहले वो नहीं जाता था। इससे क्या होता होगा, दोनों का भी बिजनेस अच्छी तरह से होने के लिए उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था। नाउ सी हियर स्टूडेंट द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दोज डेज पीपल डिड नॉट अलाउ यूज मनी टू बाय थिंग्स समथिंग, sometimes they exchange things of the same value, okay। before I tell you student about these things, वहाँ के ज़माने में, उस ज़माने में पूरे एक्सचेंज मनी ही नहीं करते थे वो लोग। तो क्या करते थे वो लोग, उनके पास अगर मनी नहीं है तो वो क्या करते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, उनको वो बदली करते थे, ओके। दिस इज़ ऑल्सो द न्यू वर्ड स्टूडेंट, राइट डाउन इन योर नोटबुक। Now see the next paragraph. In one house there lived a poor old woman and her granddaughter. The family had once been rich, but now the only things they had left of all their riches was a dish made of gold. However, the grandmother did not know it was a golden dish. The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. Okay, first of all, see the new word from this paragraph. Okay, write down these words also, granddaughter. Okay, then write down the family, learn these spellings, grandmother also. Okay, these words helps you when you write down the answers of the questions. Now at that time these spellings, these words helpful to write down the answers. So learn it properly, learn the spellings properly. Again the golden dish, okay, shelf, and then
often. Okay, now see a granddaughter, you know granddaughter, family, you know, then golden dish. Shelf means one of the place where we can keep the things. Okay, and often means they are often means not usually they are use these things often, sometimes they are using these things. Okay student, now I will explain the meaning of this paragraph. In one house there live a poor old woman and her granddaughter. एक जो वो विलेज में एक जो हाउस था वहाँ पे एक पुअर वुमन उसके ग्रैंड डॉटर के साथ रहती थी. The family had once been rich, but now the only things they had left of all their riches was a dish made of gold. It's very important. जो ये फैमिली थी, ये ग्रैंड डॉटर की जो फैमिली थी, ग्रैंड मदर और डॉटर की जो फैमिली थी, वो एक जो एज था उस टाइम वो बहुत रिच लोग थे, अमीर लोग थे. पर अभी उनके पास कुछ भी नहीं रहा, सिवा उनके पास एक गोल्डन डिश थी. वही उनकी निशानी थी कि वो कभी किसी समय अमीर थे. ओके, वो एक गोल्डन डिश उनके पास थी. बट द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो इट वॉज अ गोल्डन डिश. वो जो ग्रैंड मदर था उसको पता ही नहीं था कि वो डिश गोल्डन से बनी है, वो कॉस्टली है, वो ग्रैंड मदर को नहीं पता था. द डिश स्टूड ऑन अ शेल्फ अमंग द अदर पॉट्स एंड पैन्स एंड वॉज नॉट ऑफन यूज. जो ये प्लेट थी, बाकी डिश और पैन जो कुछ बाकी था उनके घर में, उसके उनके साथ ही वो रखी थी शेल्फ में. ओके, और कभी कभार जब लगती थी तभी वो यूज़ करते थे. Now see the next one. Now the greedy merchant passed this house calling, buy my water jars, buy my pans, buy my tinware. The granddaughter said, oh grandmother, do buy something for me. जब वो ग्रीडी मर्चेंट था उसने वो जब उस हाउस के सामने गया और वो बोल रहा था कि चलो वाटर जार ले लो मेरे से, पैंस ले लो, टिन वेयर ले लो. और जो वो छोटी बच्ची थी, ग्रैंड डॉटर थी, उसने वो आवाज़ सुनी और वो अपने ग्रैंड मदर को बोलने लगी कि चलो ना ग्रैंड मदर, कुछ तो भी मेरे लिए ले लो ना आप ये मर्चेंट से. नाउ सी हियर नेक्स्ट. My dear, said the old woman, we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even. फिर ग्रैंड मदर ने उनको क्या बोला, ग्रैंड डॉटर को, कि सी हियर माय डियर, हमारे पास, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है खरीदने के लिए, पैसे नहीं हैं और मैं ट्रेड भी नहीं कर सकती, मैं कुछ दे के कुछ ले भी नहीं सकती, इतने हम लोग पुअर हैं. Grandmother, see, I have found this gold dish among other pots and pans on the shelf. We don't ever use it. Can we trade this? Perhaps the merchant will take it and give us something nice for us. Okay. Now, see here what happens, student. वो जो ग्रैंड डॉटर थी वो जाके वो जो गोल्डन वाली प्लेट थी वो लेके आई. ओके, और उन्होंने क्या बोला, सी हियर ग्रैंड मदर, हमारे पास तो ये डिश है और हम इसको यूज़ भी नहीं करते, क्यों ना हम ये ट्रेड करें, ये प्लेट्स मर्चेंट को दे दे, फिर मर्चेंट हमको कुछ तो भी नाइस थिंग दे देगा. ओके. द ओल्ड वुमन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शोड हिम द डिश सेइंग, विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल हियर समथिंग फॉर इट. अभी गोल्ड, जो वो ग्रैंड मदर थी उनको पता ही नहीं था कि ये गोल्डन डिश है, तो उन्होंने बहुत ही हम्बल से, बहुत ही रिस्पेक्ट से वो जो मर्चेंट था उसको आवाज़ लगाई और बोला कि सर आप ये ले सकते हो और इसके बदले में मेरी ये जो लिटिल ग्रैंड डॉटर है इसको कुछ दे सकते हो. द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच इट साइड विथ अ नीडल. He came to know immediately that it was a golden dish, but he wanted to get it for nothing from the old woman. So he said, what is this worth? Not even a copper coin. He threw the dish on the ground and went away. The graft merchant was planned to come back after some time and buy the dish for a few copper coins, as if doing a great favor to the old lady. Now see a student, we all know the one of the merchant was very greedy. Okay, and the same merchant was visited to the grandmother house.
जब वो greedy merchant took the dish and scratch. Okay, this is also newer student. Okay, scratch. Okay, scratch means something doing for scratching. Okay, with the help of needle. Needle also immediately, fast. The meaning of immediately means fast. Okay, again the new word come from here. Okay, great favor, great favor. Okay, great favor means to give you the favor. Okay, to give you the what we say, I am very I think very good for you. Okay, this is called a great favor. Now see a student what happened next. द ग्रीडी मैन वहाँ पे जब जा रहा था, उन्होंने क्या किया, फिर वो डिश को लेके उसने, उनके पास नीडल होता है तो नीडल से उसने स्क्रैच किया वो डिश को, और इमीजिएटली फास्टली इमीजिएटली तुरंत उसको समझ में आ गया, क्योंकि वो हमेशा करते थे ये, कि ये जो डिश है वो ऐसी वैसी डिश नहीं, वो गोल्डन डिश है. ओके, सो उन्होंने क्या किया, उसको जो था, बट ही वांटेड टू गेट इट फॉर नथिंग, पर उसको वो कुछ भी पैसे न देके, और नहीं तो फिर कम से कम मनी देके वो डिश उसको ख़रीदनी थी, क्योंकि वो ग्रीडी था. तो उसने क्या किया, उसने क्या बोला वो ओल्ड वुमन को, कि ये तो इसका कुछ वर्थलेस है, इसका कुछ भी मनी नहीं आने वाला, ये तो कॉपर के भी नहीं है. तो उसने वो डिश को फेंक दिया. ही थ्रीव द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे, और वो निकल गया. सी अ स्टूडेंट, द प्लान, व्हाट्स द प्लान इज गोइंग इनटू द माइंड ऑफ दिस ग्रीडी मर्चेंट. उनके माइंड में क्या प्लान चालू था, कि वो क्राफ्ट मर्चेंट क्या करने वाला था, वो पहले तो उसने कुछ भी नहीं सही, तो उसने तो झूठी बोला कि ये गोल्डन का भी नहीं है, वो तो कॉपर का भी नहीं है. उसने वो डिश को फेंक दिया, और उसने क्या प्लान किया, अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और बाद में एक राउंड लगा के थोड़े बहुत पैसे देके ये लेडी से मैं क्या करूँगा, सिंपैथी लेके, उसको दया आ गई मुझे आपके ऊपर, इसलिए मैं आया वापस, और थोड़े बहुत पैसे देके वो डिश लेके जाने वाला था वो. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. After a while, the honest merchant finished the round of his street and entered the street where the old lady lived. He passed her house, calling, "Buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सीएस टू हमने पहले देखा, उन्होंने डिसाइड कर दिया था जब एक मर्चेंट राउंड कंप्लीट करेगा तो ही दूसरा मर्चेंट उसी स्ट्रीट पे जाएगा. तो जब ग्रीडी मर्चेंट निकल गया प्लान करके कि वापस आऊँगा और कम से कम पैसे में ये मैं गोल्ड डिश लेके जाऊँगा, तो उसी समय क्या हुआ, जो अच्छा वाला ऑनेस्ट वाला मर्चेंट था, सी अ स्टूडेंट द अपोजिट वर्ड्स. हाँ, हियर वी कैन सी द ग्रीडी. ओके, द अपोजिट ऑफ ग्रीडी इज ऑनेस्ट. ओके, ग्रीडी के अपोजिट क्या है, ग्रीडी. ओके, ग्रीडी के अपोजिट क्या आ गया, ऑनेस्ट. ओके स्टूडेंट, नाउ सी स्टूडेंट क्या हुआ, जो ऑनेस्ट मर्चेंट था वो अपना राउंड ख़त्म करके ये ग्रीडी मर्चेंट के स्ट्रीट के वहाँ पे राउंड लगाने लगा, और वही उसने बोला चलो आ जाओ, वाटर जार्स ले लो, मेरे से बाय करो. द लिटिल गर्ल heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. Now see here student, the new word begged. Okay, the meaning of begged means to give request. Okay, again the little girl heard this sound and he again come and give request. Okay, give request to her grandmother that please go there grandmother and see, show this dish to that merchant and see what he was give to exchange. Okay, चलो ग्रैंडमदर अभी जो आया है मर्चेंट उनको भी ये डिश दिखाओ और वो क्या देता है वो देखो. My child, said the grandmother. The merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. उन्होंने वापस उनको समझाया ग्रैंडमदर ने, देखो अभी जो मर्चेंट गया उसने तो ये डिश को फेंक दिया, उसने बोला ये कुछ भी काम की नहीं है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं ट्रेड के लिए. But grandmother, said the girl, this one looks pleasant. Ask him, perhaps he will give us something for it. Okay, the meaning of pleasant means, this is also the new word. The meaning of pleasant. Okay, the meaning of pleasant means
The meaning of pleasant means what? See here, pleasant or polite. Polite. It is called a polite. Okay. Polite. Now, polite. बट अ ग्रैंड मदर सेड अ गर्ल ने क्या बोला, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो पोलाइट लग रहा है ये मर्चेंट। चलो ना प्लीज़ उसके पास दिखाओ ये डिश, उनको दिखाओ। कॉल हिम देन एंड शो इट टू हिम सेड द ओल्ड मन। चलो आप अभी इतना मुझे ये कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, तो ग्रैंड मदर ने बोला चलो उनको बुलाओ, वो मर्चेंट को बुलाओ और ये डिश दिखा दो। एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हिज हैंड he knew it was of gold immediately. He said, this is a golden dish. It is worth more than all my money and all my wars. I will bring enough money tomorrow and then buy it from you. See a student, this is a very honest merchant. So what happened here? जब उन्होंने ये मर्चेंट ने, ऑनेस्ट मर्चेंट ने वो डिश को देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये गोल्ड की है। तो उन्होंने क्या आंसर किया, उनसे क्या आंसर किया उन्होंने कि देखो जो ये डिश है, जो ये है वो गोल्डन डिश है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत महंगी डिश है, मेरे पास अगर जो कुछ चीज़ें वो भी अगर मैं आपको देता हूँ फिर भी जो मनी है वो कम पड़ेंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास अभी जो चीज़ें वो आप रख लो और भी मैं पैसे लेके कल आके ये आपके पास से लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत कीमती डिश है, ये गोल्डन डिश है। नाउ द ओल्ड वुमन वॉज ग्रेटली सरप्राइज, शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्ट एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड। अभी उनको जो वुमन थी वो बहुत सरप्राइज हो गई। ओके, सरप्राइज होना मतलब बहुत आश्चर्य हो गया उसको सुन के कि पहले मर्चेंट ने उसको फेंक दिया था, अभी ये जो ऑनेस्ट वाला, ये गुड वाला जो मर्चेंट है वो सही बात बता रहा है मुझे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये गोल्डन है। तो वो इम्प्रेस्ड हो गई और उसने बोला नहीं आप एक काम करो, ये डिश आप आज लेके जाओ और कल मुझे मनी लेके आना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। The honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish. He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. See a student, the difference between honest person and greedy person. अभी उसने क्या किया, ये honest merchant ने जो कुछ उसके पास जो चीज़ें थी, जो बर्तन थे, जो वॉर्स थे, वो जितना भी मनी था उन्होंने तो वो ओल्ड वुमन को दे दिया, पर उनको वापस जाना था। उसके लिए जो बोट राइड के लिए जितने पैसे लगते थे अपने गांव वापस जाने के लिए, उन्होंने सिर्फ उतना मनी जो ओल्ड वुमन थी उनके पास से लिया और वो चले गए। आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस where he had seen the golden dish and said, bring that dish to me and I will give you something for you. अभी जो ग्रीडी वाला मर्चेंट था थोड़ी देर के बाद जो उन्होंने प्लान किया था वापस आने का, वो वापस आ गए और सिंपैथी दिखाने लगे ओल्ड वुमन को और बोले चलो जो मैंने वो डिश देखी थी ना, चलो दे दो मुझे और मैं कुछ तो भी देता हूँ आपको। ओके, नाउ सी हियर स्टूडेंट, नो सेड द ग्रैंडमदर, यू सेड the dish was worthless, but another honest merchant has paid a great price for it, so I gave it to him. You should not try to take advantage of the poor and needy people. What could the greedy merchant say? He paid the price for his dishonesty and greed. Now this is very important line, student. Okay, what we learn from this lesson, this is we learn, okay, you should not try to take advantage of the poor and needy people. Okay, and also always remember honesty is the best policy. What happened here? Then the grandmother said to the greedy merchant, before that you said that this dish was worthless. Now another merchant, the honest merchant, has visited to my house and also he gave me the great price for the same dish.
I gave to him. And so she gave the advice to the greedy merchant that you should not try to take advantage of the poor and the needy people. आपको कभी भी एडवांटेज, कोई आपको कभी भी उसका गैर वर्तन और उसका फ़ायदा गैर फ़ायदा नहीं लेना चाहिए पुअर पीपल से, और जो नीडी है, जिनको ज़रूरतमंद है, उनसे आप ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए आपको. ओके, What could the greedy merchant say? अभी वो greedy merchant क्या बोलेगा? He paid the price for his dishonesty and greed. उन्होंने ऑलरेडी, जो ग्रीडी मर्चेंट था, उन्होंने उसका जो प्राइस था उसका उसने खो दिया था वो गोल्डन डिश को. ओके, पहले तो उसने विजिट किया था, वो ले सकता था अच्छी प्राइस दे के वो वुमन से वो पैन ने सॉरी डिश, और उसने क्या किया, वो ग्रीडी था, तो क्या हो गया, उसका लॉस हो गया. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, ऑलवेज स्पीक truth.